everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. Welcome to your session of UPSC Mains Answer Writing in Science and Technology. So let's get started and have a look at the very first question here. So the first question that we are going to write today is analyze the debate between lithium ion batteries and hydrogen fuel cells. So basically we wish to have a debate between the lithium ion batteries and hydrogen fuel cells. So सबसे पहले हम introduction में we can start with why do we actually require lithium ion batteries or the hydrogen fuel cells, right? So यहाँ पर हम introduction में easily quote कर सकते हैं कि owing to the क्लाइमेटिक चेंज, इतना सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें अब्रप्ट अर्थक्वेक्स देखते हैं, रेनफॉल्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स देखते हैं, जो कि इतनी जल्दी जल्दी क्लाइमेट चेंज हो रहा है विच इज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, राइट? एंड ग्लोबल वार्मिंग, एज यू नो, द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. सो दिस हैज बीन अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट. सो क्लाइमेट चेंज होना owing to global warming is mostly related to the fumes or the exhaustive gases from the combustion engines of our vehicles. So why do we need these cells? We basically need e-vehicles. So when we need e-vehicles, there are two different ways of providing power to an e-vehicle, which includes the lithium ion batteries or the hydrogen fuel cells. So जब हम debate करेंगे इनके बारे में, इन्हें compare करेंगे, so हम introduction में, body of the answer में we'll tell a few things about these particular cell batteries, then we'll come to the advantages, right? So हम advantages देखेंगे इसमें, जब हम इन्हें compare करेंगे तो हम advantages देखेंगे, एक brief introduction देंगे to how do they work, right? क्या सोर्सेज हैं, कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है, इस तरह से इंट्रोडक्शन देंगे रिगार्डिंग बोथ द सेल्स. देन विल कम टू द एडवांटेजेस एंड साइड बाय साइड वी मस्ट एंड वी हैव टू टेल अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड, राइट? सो शॉर्टकमिंग्स क्या हैं या चैलेंजेस क्या हैं, उन्हें भी हम नोट डाउन करेंगे अपने आंसर में. एंड इन द एंड वील हैव अ कंक्लूजन, राइट? So coming to the lithium ion batteries. So lithium ion batteries are the batteries which use, basically every cell consists of electrodes, a positive electrode and a negative electrode along with the electrolyte. Electrolyte जो कि source of ions भी है. So when we talk about the lithium ion batteries, during the charging up, the lithium ions move from the positive electrode to the negative electrode, right? And when the battery is discharging, the reverse happens. The lithium ions move through the electrolyte from the negative to the positive. So this results in the power supply to the battery. अब lithium ion battery की जब हम बात करते हैं, it is used in a number of devices, be it our watches, our laptops and the e-vehicles as well. So lithium ion battery काम किस पे करती है, electrodes कौन से हैं, वो हम बता देंगे brief introduction में, right? जब हम brief introduction बताएंगे वहां पर हम इस चीज को डिस्कस कर देंगे कैसे ये लिथियम आयन बैटरी वर्क करती है. अब बेसिकली हमें डिबेट चाहिए, देन वी कम टू द एडवांटेजेस. सो हम एडवांटेजेस की अगर बात करें, सो लिथियम आयन बैटरीज आर रिचार्जेबल. दे हैव अ लाइफ साइकिल ऑफ अबाउट 5000 रिचार्ज. तो इतने सारे रिचार्जेस जो हैं, दैट मेक्स इट अ वेरी गुड ऑप्शन व्हेन यू टॉक अबाउट यूजिंग दीज बैटरीज. साथ ही साथ लाइट वेट है, हाई एनर्जी डेंसिटी है, दे कैन जनरेट मोर ऑफ एनर्जी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लीन एंड सेफ टेक्नोलॉजी व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू द फॉसिल फ्यूल्स. सो अगर हम बात करें अपने निकल कैडमियम सेल्स की, देन एज कंपेयर टू द निकल कैडमियम सेल्स दे हैव द लोअर रेट ऑफ रिचार्जिंग. उन्हें रिचार्जिंग की जरूरत बहुत कम पड़ती है, राइट? सो कॉस्ट इफेक्टिव है, लाइट इन वेट है, हाई एनर्जी डेंसिटी है व्हेन वी टॉक अबाउट द लिथियम आयन बैटरीज. तो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज की हम कुछ एडवांटेजेस लिखेंगे, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू नो द चैलेंजेस ऑल्सो. सो अगर हम लिथियम आयन बैटरीज की बात करें, सो वी नीड बेसिकली लिथियम कंपाउंड्स एंड इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट लिथियम फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो यहाँ पर इट इंक्रीजेज द कॉस्ट को बढ़ा देगा जहाँ हमें लिथियम इम्पोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज लिथियम इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन फ्यू कंट्रीज. बहुत कम कंट्रीज हैं जहाँ पर लिथियम डिपॉजिट्स मिलते हैं, सच एज अफगानिस्तान एंड चाइना. सो वी नीड टू डिपेंड ऑन दीज कंट्रीज टू गेट lithium to make our lithium ion batteries. So lithium ion batteries owing to the lithium deposits हमें import करने पड़ते हैं, हम बड़े import
वाटर हैं, एंड दिस लीड्स टू द फैक्ट दैट दीज प्रूव टू बी कॉस्टली, राइट। सो हम कुछ चीज़ें जो हैं उनकी नेगेटिव एस्पेक्ट जो है उसका वो सामने लाएंगे। ठीक, तो अब जब हम लिथियम आयन बैटरीज के ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, देन वी कम टू द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बेसिकली, अगेन एन इंट्रोडक्शन, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर द chemical is used, the chemical energy of the fuel is used to generate electricity, water and heat। और अगर वो फ्यूल हाइड्रोजन है तो हमारे पास वाटर बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज कम्स हियर, जहां पर दिस हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ जीरो एमिशन बैटरी। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जीरो एमिशन में काम करता है, फॉसिल फ्यूल्स की तरह बिल्कुल काम नहीं करता। और हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें क्या, हम अपने रिसोर्सेज पर डिपेंड कर सकते हैं रादर देन इंपोर्टिंग ऑयल और समथिंग एल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो ऑब्वियसली लाइट वेट है, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है, बट साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट। तो सबसे पहले एडवांटेज में आप हाईलाइट करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अ जीरो एमिशन फ्यूल व्हेन इट कम्स टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। दीज फ्यूल सेल्स आर मॉड्यूलर, यानी कि हम अपनी एनर्जी डिमांड्स के अकॉर्डिंगली दीज आर स्केलेबल, हम इन्हें चेंज कर सकते हैं एज पर आर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। एंड दिस इज अ मोर एफिशिएंट फ्यूल सेल एज कंपेयर टू द अदर इंटरनल कंबशन इंजन सेल्स। साइड बाय साइड एक मच लॉन्गर लाइफ प्रोवाइड करता है। इट इज नॉट रिचार्जेबल, इट डज नॉट रिक्वायर रिचार्जिंग। जहां हम लिथियम आयन में बात कर रहे थे रिचार्जेबल बैटरी है, नो डाउट बहुत सारे लाइफ, इट हैज अ लॉन्ग लाइफ साइकिल व्हेन इट कम्स टू लिथियम आयन। यहाँ पे चार्जिंग की, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में चार्जिंग की जरूरत नहीं है, जीरो एमिशंस हैं, हमें किसी चीज को इंपोर्ट नहीं करना है। सो दिस मेक्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल अ बेटर ऑप्शन, राइट। एडवांटेजेस दोनों के हो गए, दोनों की डिबेट चल रही है। देन वी कम टू द चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो इसका ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज इज अ बिट डिफिकल्ट थिंग बिकॉज इट इज अ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, एंड मोर ओवर व्हेन इट कम्स टू यूज इन ई व्हीकल्स देन वी आर मोर tempted to use the lithium ion batteries। no doubt हमें उसमें challenges face करने पड़ते हैं, but owing to its highly inflammable nature of hydrogen we prefer more the other lithium ion batteries, right। so यहाँ पर it is almost impracticable to store and to work with this hydrogen fuel cells। no doubt the technologies are being developed जहाँ पर हम hydrogen fuel cells को better use करें। so दोनों के advantages बताएंगे, दोनों के challenges बताएंगे, what are the challenges and faced using in these two types of cells। then we come to a concrete conclusion। वहाँ पर हम क्या बताएंगे कि we need to work more on the fuel cell electric vehicles when we are talking about the laptops, the electric vehicles and other important devices। we are more using lithium ion batteries, no doubt we have to import them, but the technology is being developed and we have to look for options where fuel cell electric vehicles could be easily used, right। so this is regarding the debate between lithium ion batteries and hydrogen fuel cells। so the second question that we have is, what do you understand by 5G technology? Discuss the advantages it offers। so 5G technology, all of us know it is 5th generation mobile network, और इसकी importance और advantages बहुत easy से हम समझा सकते हैं, right। we can make a flowchart kind of thing, और कुछ छोटा सा diagram बना के पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट चीजों को बता देंगे, रिक्वायरमेंट्स बताएंगे कि किन किन रिक्वायरमेंट्स को ये सेटिस्फाई करता है, राइट। ऑल ऑफ अस नो इट इज मच बेटर देन 4G एंड 4.5G। इट प्रोवाइड्स बेटर डाटा कवरेज, एक बेटर डाटा देता है, एंड साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। सो बेटर डाटा कवरेज जो कि इसके एक एडवांटेजेस में से एक है, राइट। so minimal latency, cheaper mode of communication, with a deeper coverage, right।
सो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे 5G टेक्नोलॉजी इज द 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क विच हेल्प्स अस टू गेट बेटर कम्युनिकेशन, चीपर कम्युनिकेशन एंड लेसर लेटेंसी। तो डाटा बहुत फास्ट ट्रैवल करेगा और लेटेंसी बहुत कम होगी। सो एक फिगर के थ्रू भी हम इसको समझा सकते हैं। वी कैन इजिली राइट डाउन दैट इट वुड बी इंक्रीजिंग अबाउट बैंडविड्थ टू द thousands of times and coverage बहुत better देगा, up to 100 times more number of connected devices per unit area would be catered to with the demands. So 100% जो है हम 100 times और एरिया के जितने भी डिवाइसेस हैं उसे कवर कर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेटेंसी जो है वो बहुत कम होगी। देयर वुड बी 90% लेस रिडक्शन इन नेटवर्क एनर्जी यूजेज, राइट। और हम अगर अपने लैपटॉप्स की बात करें या और डिवाइसेस की बात करें, सो दिस वुड बी इंक्रीज अप टू 10 years बैटरी लाइफ ऑफ आवर लो पावर IoT डिवाइसेस, राइट। सो IoT डिवाइसेस जो है हमारे, उनकी पावर को, कम बैटरी लाइफ को और बढ़ाएगी, राइट। सो ये कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो हमें ध्यान रखनी है। बट साथ ही साथ उन्होंने हमारे को पूछा डिस्कस द एडवांटेजेस। सो जब हम एक फ्लो चार्ट सा बना लेंगे, जॉट डाउन कर लेंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन ये भी कर सकते हैं कि इन मीटिंग द डिमांड्स कुछ चैलेंजेस अपकमिंग हैं, चैलेंजेस अभी भी फेस कर रहे हैं हम, राइट। वेन एवर देर इज, वो चैलेंजेस जो है वो थोड़े हाईलाइट करेंगे एडवांटेजेस के साथ, राइट। जैसे हम कोई भी कंपनी है दैट इज नॉट श्योर वेदर टू इन्वेस्ट इन अ न्यू टेक्नोलॉजी और नॉट, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेयर इट इनिशिएट्स, वेयर इट प्रोवाइड्स इंसेंटिवाइजेस द अदर कंपनीज टू स्विच टू द न्यू टेक्नोलॉजीज, डिमांड्स को केटर करे। अब हम इंडियन ऑपरेटर्स की बात करें तो दे आर ऑलरेडी इन डेप्ट, तो अगर हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी, सो दिस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प बेटर रियलाइज द ड्रीम्स ऑफ हैविंग अ डिजिटल इंडिया, राइट। सो इन एडवांटेजेस के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं, एडवांटेजेस में ऐड कर सकते हैं, वेयर वी ड्रीम ऑफ गेटिंग स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट हाउसेज हम चाहते हैं, वी नीड टू हैव स्मार्टर ग्रिड्स, राइट। एंड मोर इंपॉर्टेंट द स्मार्ट व्हीकल्स की बात करें, सो shifting to new technologies, 5G like technologies would help us realize, make a better digital India, right? So advantages आप mention करेंगे, simple 2-3 lines में 5G technology को mention करेंगे, and owing to such a flow chart, एक छोटा diagram बनाकर, flow chart बनाकर, advantages के साथ कुछ challenges, and what can the government do, what is the way forward when we want to realize the 5G technology, कैसे government incentivize कर सकती है, कुछ points jot down करेंगे, incentivizing the government's efforts, प्रोवाइडिंग मोर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ IPR राइट्स, यानी कि जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी, कुछ इनोवेशन प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ हम कुछ इंसेंटिव्स अटैच करेंगे, देन ओनली द ऑपरेटर्स जो है वो शिफ्ट करेंगे टू द 5G टेक्नोलॉजी। सो 5G टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, द वेरियस एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद इट विच इंक्लूड मोर ऑफ कवरेज, अ डीपर कवरेज, easier and more effective method of communication with lesser latency, along with the advantages that it offers to bring to develop a digital India, right? So 5G technology के वो कुछ advantages हम point wise जो है उसे jot down कर सकते हैं, and in the end हम government का role emphasize करके कि how can the government help in increasing, switching over to these new technologies, कैसे हम research and development में काम करेंगे, jot down करके conclusion एक बना लेंगे, right? We move to the next question. So the third question that we have here is, what do you understand by cloud computing, and list down the advantages and limitations of cloud computing. So introduction में हम cloud computing समझाएंगे. So cloud computing basically refers to the various services that are provided over the cloud, यानी कि over the internet. तो ये services कौन सी हो सकती हैं, right? ये services हो सकती हैं databases की, right? सर्वर्स प्रोवाइड करना, ठीक, साथ ही प्रोवाइड किए जा सकते हैं नेटवर्किंग, स्टोरेज, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस, राइट? सो दीज आर द वेरियस सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट.
databases, servers, networking, storage space provide करना, intelligence या analytics provide करना. So in case of cloud computing, basically there are three components. एक backend है which is always maintained by the cloud vendor, and then the person who is taking the service has to pay for it, right? So एक हो गया हमारा cloud vendor जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बैकएंड मेंटेन करेगा, एंड देन देयर इज अ यूजर जो पे करता है इन सर्विसेज के लिए, एंड ये सर्विसेज they are scalable, they can be modulated as per the requirement, right? So these are scalable services. ठीक, जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कर देंगे, क्लाउड वेंडर, यूजर, एंड दीज सर्विसेज आर स्केलेबल. सो बेसिक थ्री कंपोनेंट्स देंगे, द सर्विसेज दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, इन्हें मेंशन करेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, राइट? सो यहाँ पर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर कैटेगराइज करें तो थ्री टाइप्स ऑफ सर्विसेज में कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट इज IaaS, then there is PaaS, and then there is SaaS, right? So here we have IaaS, that is infrastructure as a service. Then we have got PaaS, that is the platform as a service, and then we have got S, which is the software as a service. तो cloud computing के three components, user है, cloud vendor है, services हैं. और services को categorize किया जाता है as infrastructure, at platform, and as well as this SaaS, the various services, जो कि software services भी हो सकती हैं और storage services भी हो सकती हैं. So इन्हें categorize करेंगे. Then we'll move to the next part of the question. List down the advantages and limitations of cloud computing. अब advantages की अगर हम बात करें तो advantages already जब हम बात कर रहे हैं cloud computing की बहुत ही relevant हैं, बहुत ही सामने आ जाती हैं. That is seamless conductivity. Seamless conductivity है, higher accessibility है, and most important यहाँ पर हम provide करते हैं डिजास्टर रिकवरी, राइट? सपोज अगर आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है, सो किसी भी ऐसे डिजास्टर से रिकवरी की जा सकती है आपके इंपॉर्टेंट डाटा की. सो वेरियस एडवांटेजेस, हायर एक्सेसिबिलिटी है, डिजास्टर रिकवरी है, एंड देन देयर इज सीमलेस कनेक्टिविटी. इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कॉस्ट सेविंग, राइट? आपको सिर्फ पे करना है एंड आप अपनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज, अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं. दीज सर्विसेज आर स्केलेबल, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप नॉर्मल रूटीन में अपने यूज कर रहे हैं, अपने डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, तो आपको अपने पास अपने डेस्कटॉप की स्पेस को पूरा ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं है. आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अपने डाटा को सेव कर सकते हैं. सो द वेरियस एडवांटेजेस आर कनेक्टिविटी, डिजास्टर रिकवरेज रहती है, कॉस्ट सेविंग है, और फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, राइट? बट यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं. जैसे अब डाटा किसी सर्वर पर पड़ा है, सपोज दैट पर्टिकुलर सेंटर इज अंडर सर्टन पार रैम्पेज, वहाँ पर कुछ पार आउटरेज हो गया, तो आपका डाटा जो है वो वैनिश हो सकता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आज जब हम बात कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन द, जहां हम साइबर एरा में रह रहे हैं, वहां साइबर क्राइम भी है. सो आपकी इंफॉर्मेशन कितनी सिक्योर है ये भी सर्वर पे डिपेंड करेगा, राइट? सो साइबर से क्राइम से बचने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, these आर द चैलेंजेस फेस्ड व्हेन वी कम टू द क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज द सिक्योरिटी. Then the data can be also damaged if there is certain natural disaster या कोई calamity होगी at the site of that or site of the storage, right? And most important, maintenance cost is sometimes very high. और कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस लेने के लिए आपको कंटिन्यूअस इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, जो कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो आज भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है. सो वी हैव टू इंश्योर अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन ऑर्डर टू हैव दीज सर्विसेज.
So briefly explain करेंगे what is cloud computing, the advantages associated and the shortcomings of cloud computing. We move to the next question. So the next question is space startups are the new sunrise industry comment. So यहाँ पर हमें अपने किस words को ध्यान देना है? Space startups को. Right, so ISRO was established in 1969 and it has come a long way when it comes to advancement in space technology. Now we talk about the space startups. So यहाँ पर हम mention करेंगे अंतरिक्ष को and NSIL बेंगलुरु को. So अंतरिक्ष which is the commercial wing of ISRO और जिसका काम है commercialize करना to the foreign countries हमारे products को satellites को launch करना. ठीक है, foreign countries के satellites को launch करना अंतरिक्ष का काम है. Then we'll talk about NSIL New Space India Limited Bengaluru. Its main work is to provide a market to sell the Indian space products into the other countries. So NSIL का role as space startups and then अंतरिक्ष का रोल when it comes to the commercial wing, उनका रोल आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब साथ ही साथ हम यहाँ पर एम्फेसाइज करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अप न्यू स्टार्टअप्स. ठीक है जी, तो एडवांटेजेस की बात करेंगे एंड सिग्निफिकेंस की बात करेंगे. सो इसरो के लिहाज से why do we need to have more space startups? So what ISRO wants is that it should take the help of private sector so as to manufacture more of satellite manufacturing में ISRO is also into there. So वो manpower जो private sector में है, वो knowledge, वो technology जो private sector में है, उसे भी एक insight दिया जाए, उसकी help ली जाए into development of India as a space development of India in the space technology. उसे number 1 बनाने के लिए private sector की help लेना is the main significant role. Why do we need to have the space startups? ठीक, सो सबसे पहले स्पेस स्टार्टअप्स होने के लिए प्राइवेट सेक्टर से नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड वॉट एवर नो हाउ वी हैव, इसे लेना बहुत जरूरी है. राइट, सो कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर विल ऑलवेज हेल्प इन कैपेसिटी बिल्डिंग. इंडिया wants to double the launches in the coming years. So coming years में अगर आपको launches डबल करनी है तो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और वो कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब चाहिए. सो कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेगी, कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करेगी and it will always help India in getting another cutting mile edge, right? So यहाँ पर डेवलपमेंट सिग्निफिकेंस ऑफ स्टार्टअप्स इंपॉर्टेंट है. आप मेंशन करेंगे अंतरिक्ष को, NSIL को, एंड देन वी कम टू द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग दीज स्टार्टअप्स. सो एडवांटेजेस में क्या आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम अपने देश की इनकम को फॉरेन हैंड्स में जाने से रोक सकेंगे. राइट, एंड उसी एट द सेम टाइम विल इनवाइट मोर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स टू ब्रिंग देयर मनी इनटू आवर कंट्री. सो ऑब्वियसली इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं इसके. More the startups, more will be the employment opportunities for the upcoming talent. तो जो new talent है उसे better opportunities मिलेंगी, employment opportunities मिलेंगी. Economic benefits के साथ साथ employment opportunities हैं. And this is very important that if the private and the public sector work hand in hand in developing space technology, so obviously we'll get more better results. So startups are all the more important. India needs to have the knowledge from the private sector and public sector work hand in hand in increasing the capacity of Indian space research organization so that we may develop and excel in space technology, right? So brief mention of these Antariksh and NSIL, and then the advantages of setting up new startups. Let's move to the next question. So here is our 5th question, that is discuss India's recent achievements in the field of space technology.
How application of this technology has helped to prove a potential space-based intelligence. So we'll look at the first part of the question, India's recent achievements in the field of space technology. Here we need to mention that India has come a long way when it comes to space technology. A number of satellites, a number of technologies have been developed, some of which are such as the launch of scramjet engines. So scramjet engines which basically use oxygen in the air to burn the fuel inside the satellite, right? So scramjet engines. Then there is development of AstroSat, India's own space observatory, which was launched in 2015. Then again we can talk about Navik, right? After that, we'll talk about Mangalyaan mission, Chandrayaan 1 orbiter mission, 2008 में जो launch किया गया, तो Navik, Chandrayaan 1, and then we can also talk that we can also write that in the coming year, India is also planning its first manned space mission, that is Gaganyaan. So कुछ important जो achievements है वो आप mention करेंगे. We'll mention about scramjet, AstroSat. We'll also mention about RLV, that is reusable launch vehicle, the launch of RLV by ISRO, जहाँ पर it will launch the space shuttle into the sky and then return back on the earth. So reusable launch vehicles, the important technologies, achievements in the field of space technology. अब हम जब बात करेंगे how the application of this technology has helped to prove a potential space-based intelligence. So space-based intelligence की जब बात करेंगे तो वहां पर हम जिक्र करेंगे EMISAT का, Electromagnetic Intelligence Gathering Satellite. So which is basically India's spy, which can spy through ice, air, forest, etc. And it is basically a signal intelligence. So it is a signal intelligence. So it can intercept the various signals by different radars and different electronic systems. So intelligence system hai. Then we can talk about that in 2019. 2019, India launched. Just a second. 2019, India launched Microsat R. So Microsat R basically was developed by ISRO and DRDO for military purposes. So military intelligence के लिए Microsat R. Then there is GSAT 7A. GSAT 7A, which has been developed for the Indian Air Force. GSAT 7 launched in 2013. It was India's first exclusive defense satellite for marine communications, Navy के लिए, right? So यहाँ पर EMISAT important हो जाता है when it comes to space intelligence. EMISAT, Microsat R, GSAT 7A. GSAT 7 launched in 2013 for marine communications. So that's all for this session of mains questions. I'll see you again. Until then, bye.